Hello, good afternoon students. Welcome back to our online classes computer of class 8 chapter 1 computer networking. I hope you all are well and healthy at home. In last class we done about the basic information about a computer networking, terminology used and types of computer network. Now our topic of today's discussion is topology, compute network topology. Actually, topology refers to the geometric arrangement of computers or nodes in a network. Means, suppose you are making a network, then how you arrange the nodes in the network, what shape you are giving to that network is the topology of the network. Basically, we prefer different kind of topology based on our requirement. So we will discuss one by one. Very first is the bus topology. Actually, this topology containing a common bus path, all the nodes are connected on either way of the bus and data can be transmitted only through the single line bus. But this topology has its own advantages and disadvantages. We will discuss one by one these things. So bus topology, I have already prepared a notes for this bus network topology, and I will share the same notes with you on the WhatsApp group. So watch the video carefully. In bus topology, it is also known as the linear bus topology. In this, only one cable is passing through and all the nodes are connected on both sides of the nodes. This cable have two ends, one end the both are the ending point of the node. Some features we will discuss one by one is it transmits data only in one directional. It means one way traffic होता है यहाँ पे. If data is transmitting, suppose यहाँ पे this is the end 1 and this is end 2. So suppose if data is transmitted from end 1 to end 2, then this will be the continuous flow of information. Whatever node is sending the information, all the information are shared by this single communication channel only. This single communication channel is known as a bus. Every device is connected with the single cable. Okay, now we will discuss some advantages of this. First is it is cost effective. It means cost effective का मतलब है, it means no separate hub or device or routing device are required, only single cable is sufficient to connect with the all nodes. Second point is cable required is least compared to other network topology. Means compared to the other networks, the cable required in this type of topology is minimum, because you know very well only this single cable is required. All rest cable are small required, used in small network. This kind of topology is generally used in the very small geographical area of network. It is easy to understand. इसको understand करना भी easy है. And last one is the easy to expand, joining two cables together. If you want to increase the size of the network, you can connect any number of computers among both sides of the cable. Also, if you want to increase the cable size, you can just join the cables and connect with each other. But along with these advantages, few disadvantages are also there of bus topology. One is cables fails, then whole network fails. You know that if cable breakdown or cable fails to perform transmission of data from one node to the another node, it means whole the network will be failed. If network traffic is heavy or nodes are no are more the performance of the network decrease. Okay, if network traffic is heavy or nodes, means if there are large number of nodes are there, then the performance of the network decrease. It is obviously because only one unidirectional communication is there. Sorry, it means if there is a heavy load, then communication will be break up for some time, or the network performance may be down. Cable has a limited length. जो केबल होती है उसकी लिमिटेड लेंथ होती है, बिकॉज फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन हम इस केबल को यूज नहीं कर सकते. इट इज स्लोअर देन द रिंग टोपोलॉजी. मीन्स जो नेक्स्ट कमिंग टोपोलॉजी है जिसका हम डिस्कस करेंगे, दैट इज रिंग टोपोलॉजी, उसके कंपेरिजन में इसका स्पीड स्लो है. देन नेक्स्ट इज रिंग टोपोलॉजी. एज यू नो दैट द रिंग मीन्स ए सर्कुलर चेन having all the nodes are connected with each other, and ultimately the first node is connected back to the last node. Look at here, suppose this is the first node connected with the second node,
which is further connected with third node, fourth node, and at last fifth node. And fifth node is directly connected to the first node. So in this way, they are making a chain. So this kind of topology is known as ring topology. Some features of ring topology we will discuss here in this. A number of repeaters are required for the ring topology for large number of nodes. So if you are using more than 100 nodes, then at least you require a repeater after every 100 nodes. Then transmission is unidirectional, but either um, if either clockwise और anti clockwise. It means unidirectional का मतलब क्या है, अगर आपका इस नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर जो कम्युनिकेशन फ्लो ऑफ डेटा है वो अगर आपका ये क्लॉकवाइज है, मीन्स इन दिस वे, आपका ऐसे है, ऐसे ऐसे है, तो दैट इज क्लॉकवाइज. एंड अगर ऐसे है डेटा आपका कम्युनिकेशन का फ्लो ऑफ कंट्रोल, तो आपका एंटी क्लॉकवाइज है. बट आप इसको बाई डायरेक्शनल भी कर सकते हो, इसमें पॉइंट दिया गया है, क्योंकि बाई डायरेक्शन बाई हैविंग टू कनेक्टर्स बिटवीन ईच नेटवर्क नोड, और उस टाइप की टोपोलॉजी को बोलते हैं ड्यूअल रिंग टोपोलॉजी. उसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखो सिंगल लाइन कम्युनिकेशन चैनल है, ठीक है. इफ यू विल यूज मल्टी लाइन कम्युनिकेशन चैनल, वन फॉर दिस डायरेक्शन एंड अनदर फॉर दिस डायरेक्शन, then you can use this ring topology for the dual ring topology. Means you can communicate from one end to the another end by both ways, like clockwise or anti-clockwise. In dual ring topology, two ring networks are formed because ultimately two cables are required, then automatically two network will be formed. Data transmission is sequential. It means bit by bit आपका bit by bit आपका data transmit होता है from one node to the another node. और इसकी एक बात मैं बता दूं आपको, whatever data, suppose ये है कंप्यूटर आपका P1, ये कंप्यूटर है आपका P1, donuts jargon, okay. This is P1 computer wants to send data to, suppose this is P3 computer. तो अब क्या होगा कि यहाँ से डेटा आएगा आपका P2 के पास. अब P2 क्या करेगा, उस डेटा को आप एक्सेस करेगा. इट मीन्स आपका डेटा P2 के पास टेम्परेली अवेलेबल है, और वो उस आपको पता है कि नेटवर्क के अंदर जो भी डेटा ट्रेवल करता है इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ सेंडर एज वेल एज द एड्रेस ऑफ द रिसीवर. तो रिसीवर के एड्रेस के साथ ही अपने एड्रेस को मैच करेगा. एड्रेस मैच न होने से क्या होगा, इट विल सेंड इट टू द फॉरवर्ड नेक्स्ट नोड. और ये प्रोसीजर तब तक चलता रहेगा जब तक ये राइट नोड के पास नहीं पहुंच जाता. As soon as node 3 will receive the data by matching its receiver address with this address, तो क्या होगा, it will send confirmation back to the P2. P2 वो confirmation P1 को भेजेगा, so that P1 knows that the data is delivered to the right destination. Some advantages of using ring topology: transmitting network is not affected by high traffic or by adding more nodes, as only the nodes having tokens can transmit data. क्योंकि आपको पता है इसके अंदर डेटा जो है आपका हैवीली भी ट्रैवल कर सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है. जैसा कि हमने बस के अंदर किया था, अगर आपका डेटा हैवीली ट्रैवल करना है तो आपका स्पीड डिक्रीज हो जाएगा. Cheap to install and expand. It is very easy and to expand, but also it is cheap to expand. Along with this, few disadvantages are also there. Very first disadvantage is troubleshooting is very difficult. Troubleshooting means if any node fails, then it is very difficult to find out where is the problem. Because ring topology के अंदर अगर आपका एक नोड खराब हो जाता है, it means whole the network will be failed. एडिंग और डिलीटिंग द कंप्यूटर डिस्टर्ब्स द नेटवर्क एक्टिविटी. इससे क्या होता है, मैंने बताया कि आपको अगर आपको कहीं एक नेटवर्क के अंदर एक नोड इंसर्ट करना है, तो उससे क्या हो जाएगा, फॉर द टेम्परेरीली योर नेटवर्क विल बी डिस्टर्ब्ड. क्योंकि आप सपोज यहाँ पे अभी ये P3 है, P3 और P4 के बीच में यहाँ पे एक कंप्यूटर ऐड करना चाहते हो, तो क्या हो, टेम्परेरीली यू मस्ट हैव टू डिस्कनेक्ट दीज टू कंप्यूटर्स. एंड इफ यू हैव डिस्कनेक्टेड एनी वन ऑफ द कंप्यूटर, होल नेटवर्क विल बी क्रैश. पूरा नेटवर्क आपका फेल हो जाएगा, फ्लो ऑफ कंट्रोल विल बी टेम्परली ब्लॉक्ड. सो एडिंग और डिलीटिंग न्यू नोड्स और डिलीटिंग द नोड्स existing in the network will disturb the network activity. Failure of one computer disturb the whole network. अगर आपका बताया मैंने आपको कि if any one of the node get fails, the entire network will be failed. Then next one is star topology, and it is very popular topology used in everywhere in offices generally.
why it is popular and why people prefer to use this kind of topology, because it has a central control hub. All the nodes are connected directly to this central device. Whatever data is transmitting from one node to the another node is going through this hub only. Sometimes you can say it's switch or router, it may be. In our computer lab also, in junior computer lab, we have a networking, and that kind of networking is a star topology, because as the name star, it make a shape of the star. It means क्या है कि this is hub, or sometimes we know it is a server, central server. Whatever data is transmitting is controlled by this central server only. All the nodes or computers connected directly to this, एक डेडिकेटेड केबल होती है उनके पास, जो एक नोड को दूसरे नोड से सेपरेट रखती है, बट वो आपस में कहाँ से कनेक्टेड होते हैं, सेंट्रल नोड के थ्रू, सेंट्रल सर्वर के थ्रू. So let's discuss some features of star topology. Every node has its own dedicated connection to the hub. जो ये हब है, जिसको हम सर्वर बोला, स्विच बोला, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं. इससे क्या है कि अगर आपको कोई डेटा एक्सेस करवाना है डायरेक्ट हब से या सेंट्रल सर्वर से, वो फास्टली एक्सेस हो जाएगा. सेकंड, हब एक्ट एज ए रिपीटर फॉर डेटा फ्लो. ये रिपीटर का भी काम करता है. इट मीन्स सपोज ये आपका P3 है और ये P1 को भेजना चाहता है डेटा, then P3 will send data first to the hub, and then hub will send it to the directly P3, not 2 or 4, because this data containing and send receiver address, and hub knows which address is of which computer. Advantages of can be used with twisted pair cable, ऑप्टिकल फाइबर केबल और कोएक्सियल केबल. इसके अंदर तीनों तरह की केबल यूज हो सकते हैं. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, ट्विस्टेड पेयर केबल कैसी होती है, ऑप्टिकल फाइबर कैसी होती है, और कोएक्सियल कैसी होती है. तो इस टाइप ऑफ नेटवर्क के अंदर तीनों की तरह की केबल आप यूज कर सकते हो. इसका एडवांटेज क्या है, फास्ट परफॉर्मेंस विद फ्यू नोड्स एंड लो नेटवर्क ट्रैफिक. अगर आपके लिमिटेड नोड्स हैं, 10 15 20 अगर आपके नोड्स हैं, तो उस केस में ये फास्ट परफॉर्मेंस देता है. ठीक है, नेटवर्क ट्रैफिक बिल्कुल लो होता है. इवन हंड्रेड्स ऑफ नोड के ऊपर भी ये ज़्यादा स्पीड लो नहीं करता है. हब कैन बी अपग्रेडेड इजीली. हब को आप बार बार अपग्रेड कर सकते हो. सपोज अगर आपके अभी नेटवर्क के अंदर रिक्वायरमेंट थी 16 कंप्यूटर की, तो 16 पोर्ट का हब आपने खरीद लिया. उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट होगी 32 या ज़्यादा की, तो आप उस सिंपल आपको हब को रिप्लेस करना, नथिंग यू हैव टू डू, जस्ट रिप्लेस द हब. इजी टू ट्रबल शूट. इजी टू ट्रबल शूट का मतलब क्या है, if any kind of problem is there, if any node is not working or something failed connection is coming from, so it is very easy to detect where the actual error is, because everything is controlled by the central hub. easy to setup and modify. इसको सेटअप करना और मॉडिफाई करना इजी है, क्योंकि डायरेक्ट आपको हब से कनेक्ट करना है और एक बार सेटिंग करनी है. only that node is affected which has failed. rest all nodes can work very smoothly. मैंने आपको बताया कि अगर कोई एक नोड खराब हो गया किसी भी वजह से, तो इट विल नॉट इफेक्ट द इंटायर नेटवर्क परफॉर्मेंस. इंटायर नेटवर्क परफॉर्मेंस विल वर्क स्मूथली. ओनली दोज कंप्यूटर्स विल गेट डिस्टर्ब whose connection fail. इसके डिसएडवांटेज भी हैं कुछ. थोड़ा सा क्या है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज हाई. बिकॉज इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाई कहाँ से है कि जो केबलिंग है वो ज़्यादा लगती है इसके अंदर. ये देखो, हर एक कंप्यूटर को सपोज एक एक बिल्डिंग से एक रूम है, एक रूम पे कोने में रख दिया, तो पूरे रूम के अंदर अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हो, तो उस कॉर्नर से आपको वायरिंग करना पड़ेगा हर एक कंप्यूटर के लिए इंडिपेंडेंट. ऐसा नहीं है कि पहले कंप्यूटर में अपने वायर जोड़ा, उसके बाद आप उसी को फॉरवर्ड कर रहे हो सेकंड को. नो, यू शुड हैव टू ज्वाइंट ए सेपरेट केबल फॉर अनदर नोड. एक्सपेंसिव टू यूज. इसको यूज करना भी एक्सपेंसिव, क्योंकि आपको हब भी लेना पड़ता है, आपको सेंट्रल सर्वर भी लेना पड़ता है, आपको केबलिंग भी लेनी पड़ती है. इफ द हब फेल्स देन द होल नेटवर्क स्टॉप. क्योंकि अब इसमें डिसएडवांटेज मेजर जो है वो ये है कि अगर आपका कोई ये किसी रीजन से ये हब आपका फेल हो गया, क्योंकि आपको क्लियर सी बात है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय दिस, डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस. अगर यही आपका फेल हो गया तो इंटायर नेटवर्क क्रैश हो जाएगा. इसलिए ये इसका मेजर डिसएडवांटेज है. परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन द हब दैट इज डिपेंड ऑन इट्स कैपेसिटी. ये भी जरूरी है. इफ योर हब इज ऑफ वेरी पुअर कैपेसिटी, तो आपके नेटवर्क के परफॉर्मेंस जो है वो बहुत पुअर रहेगी. अदरवाइज इफ यू हैव ए वेरी हाई कैपेसिटी hub, then the network performance will be very high. Then we will discuss about mesh topology. I forgot to write its name. In mesh topology,
आई थिंक इट इज मेश टोपोलॉजी ना, बस स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी इज देयर एंड मेश टोपोलॉजी. Okay, we will discuss mesh topology. In mesh topology, every single node in a network is connected to all other nodes or computers in the network. ये आपकी mesh topology होती है. इसमें क्या होता है कि every node is directly connected with all other nodes. जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है कि सपोज ये आपका नोड है, तो इस नोड के रेस्ट ऑफ द 5 नोड हैं, तो इस नोड, ये नोड आपका इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, और इससे ऐसे, एंड इन द सेम वे ऑल नोड्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर डायरेक्टली. तो इसका एक फायदा क्या है, इसका एक ही फायदा जो मेजर ये है कि इफ एनी वन नोड और टू नोड फेल्स द एंटायर नेटवर्क विल वर्क स्मूथली. क्योंकि अगर आपका सपोज इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर का कनेक्शन फेल हो गया, तो नो प्रॉब्लम, दैट डेटा कैन बी फ्लोड फ्रॉम अदर वेज ऑल्सो. ये डेटा आपको इस कंप्यूटर को भेज देगा, यहाँ देखो इसको, और ये डायरेक्टली फिर इसको भेज देगा. क्योंकि यहाँ पे क्या है, मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन एवरी नोड. ये जनरली लैन्स के अंदर यूज होती है, और खासकर तब यूज होती है जब हमें लॉस ऑफ नेटवर्क मिनिमम चाहिए होता है. In this kind of network, chance of breakdown is very minimum. You can say almost zero होता है इसके अंदर. ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मेश टोपोलॉजी के एडवांटेजेस कर लेते हैं. ईच कनेक्शन कैन बी कैरी इट्स ओन डेटा लोड. ठीक है, इट इज रोबस्ट, फॉल्ट इज डायग्नोस्ड इजीली, प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी. ये इसके एडवांटेजेस हैं. इन एडवांटेजेस के बाद हम इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, लेकिन इसे एक पॉइंट था हमारा, इट इज रोबस्ट. रोबस्ट का मतलब क्या होता है, एक एबिलिटी ऑफ ए नेटवर्क टू परफॉर्म वेल अगेंस्ट द अटैक्स. तो अगर आपके मेश टोपोलॉजी के अंदर क्या है कि अगर कोई अटैक भी हो रहा है नेटवर्क के ऊपर, तो उसको भी वो वेल मैनेड से उसका हैंडल कर लेता है. दैट्स इट रोबस्ट मीन दिस इज. फॉल्ट डायग्नोसिस इजीली होता है, क्योंकि अगर कोई भी फॉल्ट है तो उसको डायग्नोस करना इजीली हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली डेडिकेटेड कनेक्शन होता है एवरी नोड के साथ. डिसएडवांटेज क्या है, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि आपको पता है कि एवरी नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड, तो उसके इंस्टॉलेशन क्या है, वायरिंग कॉम्प्लेक्स होती है, और उसको कॉन्फ़िगर करना भी डिफिकल्ट होता है. केबलिंग कॉस्ट मोर होती है, बल्क वायरिंग इज रिक्वायर्ड. उसके बाद होता है ट्री टोपोलॉजी. ट्री टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, एक रूट नोड होता है, आप इसको सर्वर ही बोल सकते हो. उस रूट नोड के फिर सब चाइल्ड नोड कनेक्टेड होते हैं, एंड इन द सेम फॉर्म दे मेक एन हायरार्की लाइक दिस. दिस इज द रूट नोड. ये आपका रूट नोड है, इसके ये सब चाइल्ड हैं 1 एंड 2. उसके बाद इस चाइल्ड के फर्दर 2 सब चाइल्ड हैं, ये देखो ये वाले. सो इन दिस वे दे आर मेकिंग एन हायरार्की ऑफ द नेटवर्क. फीचर्स क्या क्या हैं इसके, आइडियल इफ वर्कस्टेशंस आर लोकेटेड इन ग्रुप. अगर आपके वर्कस्टेशंस जो हैं वो ग्रुप के अंदर कनेक्टेड हैं, ग्रुप का मतलब क्या है, सपोज एक पूरी बिल्डिंग है, पूरी कंपनी है, उसका मेन सर्वर एक सर्वर रूम में रखा हुआ है, और उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं उसके अंदर, और हर एक डिपार्टमेंट के अंदर एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल सेपरेट एक सर्वर है. उस सर्वर से डायरेक्टली ऑल द एम्प्लॉयज के कंप्यूटर कनेक्टेड है इन दैट काइंड ऑफ नेटवर्क. अब देखो यहाँ ये सारा, ये सपोज ये कंप्लीट ब्लॉक हो गया, ये इंटायर एक ब्लॉक हो गया जिसके अंदर सारे कंप्यूटर काम कर रहे हैं. ये डायरेक्टली नीचे वाले दोनों कंप्यूटर क्या हैं, ऊपर वाले सब कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं. अब इन दोनों कंप्यूटर के लिए ये वाला कंप्यूटर सर्वर है, एक मिनी, मतलब आप कह सकते हो मिनी सर्वर है. उसके बाद सेम प्रोसीजर यहाँ पे है. तो ऐसे ऐसे अगर डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर आपका ग्रुप के अंदर कंप्यूटर्स हैं, तो उस केस के लिए ट्री टोपोलॉजी इज द बेस्ट टोपोलॉजी. तो क्या है, इन दोनों की कंट्रोलिंग जो है कहाँ हो रही है, मेन सर्वर रूम से. ठीक है, फीचर्स क्या क्या है, इट इज यूज्ड इन द वाइड एरिया नेटवर्क. वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर इसका यूज होता है. जितने भी एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो जनरली ट्री टोपोलॉजी को फॉलो करती हैं, क्योंकि उनके डिफरेंट ऑफिसेज होते हैं अक्रॉस द कंट्रीज, डिफरेंट सिटीज के अंदर, और उनका एक मेन सर्वर रूम होता है, सर्वर ऑफिस होता है किसी भी सिटी के अंदर. वो डायरेक्टली फर्दर सिटीज से कनेक्टेड होते हैं, वो फर्दर सब जियोग्राफिकल एरिया से कनेक्टेड होते हैं. एडवांटेजेस क्या होते हैं, एक्सटेंशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी. इसके अंदर क्या होता है, बस और स्टार का कॉम्बिनेशन होता है, उसका एक्सटेंशन हो जाता है. एक्सपेंशन ऑफ नोड इज पॉसिबल एंड इजी. इसके अंदर नोड्स को एक्सपेंड करना बड़ा इजी है,
क्योंकि क्या है, एक रूट के नीचे सब चाइल्ड लगाओ, सब चाइल्ड के नीचे फिर चाइल्ड लगा दो। इजीली मैनेज्ड एंड मेंटेन्ड, इसको इजीली मेंटेन करना भी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्रुप पे मेंटेन हो रहा है ये। अगर आपको किसी भी नोड के अंदर फॉल्ट आ गया, मान लो इसी नोड के अंदर फॉल्ट आ गया, तो क्या हुआ, सिर्फ ये ब्लॉक ही आपका इफेक्टेड होगा, और नॉट इवन दिस ब्लॉक, ओनली दिस कंप्यूटर विल गेट इफेक्टेड, ऑल अदर नेटवर्क नोड्स विल वर्क स्मूथली। एरर डिटेक्शन इज इजीली डन, अगर मैंने बता दिया, एरर डिटेक्शन इजीली डन हो सकता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट फेल होता है, पूरी सिस्टम को फेल नहीं करता, पूरे नेटवर्क को फेल नहीं करता है। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज क्या है कि हैवी केबल यूज होती है, कॉस्टली होता है। इफ मोर नोड्स आर एडेड, मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट। अगर आपको सपोज यहाँ तक तो ठीक है, अगर आप फर्दर सब चाइल्ड के ऊपर जाते रहेंगे और उसका फर्दर स्प्रेड अप करते रहेंगे, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन इट। सेंट्रल हब फेल्स, नेटवर्क फेल। अगर आपका सेंट्रल हब, ये जो सर्वर है, ठीक है, ये वाला जो सर्वर है, अगर ये फेल हो गया तो वन पार्ट ऑफ द नेटवर्क, और ये फेल हो गया तो इंटायर नेटवर्क आपका फेल हो जाता है। दिस वाज अबाउट द टोपोलॉजी। दीज नोट्स आई विल शेयर विद यू। सो नेक्स्ट थिंग इन दिस इज वायरलेस नेटवर्किंग टेक। इसमें है नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है, दो तरह का नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है, पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर। इन पीयर टू पीयर, two or more computers that uses the same type of program to share the data. Each computer is considered to have equal responsibilities and act like a server to other computers. यहाँ पे क्या होता है, every computer is directly connected with the other computer, और वहाँ पे क्या होता है कि one computer can act as a server for the other computers as well, और ये हर एक कंप्यूटर के लिए अप्लाई होता है। If you want to use in small geographical area, it is better to use this kind of architecture देन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। यहाँ पे देखो, पीयर टू पीयर में क्या होता है, कोई सेंट्रल नेट सर्वर नहीं होता है, सारे नोड इंडिपेंडेंटली अपने आप में नोड होते हैं और अपने आप में सर्वर होते हैं। बट यहाँ पे क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, ओनली वन सर्वर इज देयर, रेस्ट ऑल आर क्लाइंट्स। क्लाइंट्स को मैंने नोड से बोलता है। सो इट इज ए नेटवर्क इन विच वन कंप्यूटर इज डिजाइंड designated as the server, and all the other computers connected to the network are called the clients. The clients can send the request to take the service from the server, and if server allows, then only clients can access the data. So wireless network techniques क्या क्या है आपके पास। वायरलेस, अगर आपको एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है, वो भी वायरलेस, क्योंकि वो तो हमने अभी तक तो जो डिस्कशन किया वो केबलिंग के थ्रू होता, अभी हम वायरलेस भी एक नेटवर्क एस्टेब्लिश कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट इज द वाईफाई। वाईफाई क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वाईफाई, उसका लिए स्टैंड होता है वायरलेस फिडिलिटी। ये एक शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है फॉर ट्रांसमिटिंग इंटरनेट डेटा और कनेक्टिंग टू और मोर कंप्यूटर्स विद ईच अदर। इसका एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, इसका एडवांटेज क्या है कि वन टू मल्टी कनेक्शन हो सकता है। वन वाईफाई डिवाइसेस, जो होट्स को हम हॉटस्पॉट बोलते हैं, मीन्स ए डिवाइस दैट इनेबल अदर वाईफाई डिवाइसेस टू गेट कनेक्ट विद दैट कंप्यूटर। सो एक वो वाईफाई हॉटस्पॉट होता है। ये आपका एक कंप्यूटर भी हो सकता है, कंप्यूटर भी आजकल हॉटस्पॉट बन सकता है, आपका मोबाइल के अंदर भी हॉटस्पॉट होता है, और एक आप अदर एक वाईफाई हॉटस्पॉट कोई भी डिवाइस लेके आ सकते हो, वो आप एक घर पे कहीं भी लगा सकते हैं आप उसको। उससे क्या होगा, इफ दैट वाईफाई हॉटस्पॉट इज अवेलेबल इन योर सराउंडिंग, यू कैन गेट कनेक्टेड विद दैट हॉटस्पॉट ओनली। यू कैन कनेक्ट योर कंप्यूटर, लैपटॉप, or any other electronic media that has a Wi-Fi enabled facility. Even you can use connect with your microphone, your speaker, your mp3 player, whatever you have. Then Bluetooth, इस जो वाईफाई की जो जनरली रेंज होती है वो जनरली आपकी 10 to 30 मीटर होती है, और यहाँ पे वन टू मल्टी कनेक्टिविटी हो सकती है। वन टू मल्टी का मतलब है वन वाईफाई डिवाइस कैन गेट कनेक्ट विद वन और मोर देन वन वाईफाई डिवाइसेस। वाइल ब्लूटूथ, ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है जो वाईफाई से भी पहले डेवलप हुई थी। और ब्लूटूथ के अंदर क्या होता है, इसकी जनरली रेंज जो होती है 1 to 10 मीटर होती है। इसकी जो रेंज है वो वाईफाई से बहुत कम होती है जनरली, यानी कि आप 1 मीटर to 10 मीटर मैक्सिमम, यानी कि फॉर द इंटायर रूम इट इज पॉसिबल टू कनेक्ट विद दैट ब्लूटूथ डिवाइस। आप इस ब्लूटूथ डिवाइस से आपके आपके अपने ब्लूटूथ हैंडसेट जो भी आपके हैं, आपके
लाइक माइक्रोफोन है, स्पीकर है, ऑडियो प्लेयर है, आप इनको और अप टू 2 Mbps की स्पीड से आप इसमें डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है प्रोटोकॉल्स। ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये प्रोटोकॉल क्या होते हैं? जैसे कि हम बार बार जनरल रियल लाइफ में बोलते हैं कि आप प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स? एक्चुअली प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क। आपको आपने देखा होगा, आप किसी भी अपने फ्रेंड को फोन कॉल कर रहे हो या अपने फ्रेंड को चैटिंग पे मैसेज डाल रहे हो, हेलो हाउ आर यू, आप फेसबुक पे करते हो, व्हाट्सएप पे करते हो, तो जिस नंबर पे आपने डेटा डाला है, मैसेज किया है या कॉल किया है, टेक्स्ट किया है, वीडियो किया है, वो उसी नंबर पे डिलीवर होता है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आपने अपने फ्रेंड को XYZ जो फ्रेंड है उसको अपने डेटा भेजना चाहा और वो किसी ABC को चला गया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम फॉलोज ए रूल दैट इज डिजाइंड टू कम्युनिकेशन। एवरी कंप्यूटर हैज इट्स एड्रेस। when we send some data to a computer, particular computer, that data contains the sender address, receiver address as well। और जिस कंप्यूटर पे भी नेटवर्क के अंदर जो रिसीवर एड्रेस जहाँ पे जाता है वो यूनिक रिसीवर एड्रेस होता है। इसलिए सपोज आप पे कोई भी ईमेल अकाउंट बनाते हैं, कोई भी आपका मोबाइल नंबर है या व्हाट्सएप नंबर है, तो वो सारे यूनिक नंबर होते हैं और वो सारे प्रोटोकॉल्स के फॉलो करते हैं और आपको राइट डेस्टिनेशन पे उसकी डिलीवरी कराते हैं। सॉरी। तो प्रोटोकॉल क्या बताया मैंने? इट इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स कम्युनिकेशन बिटवीन द नेटवर्क्स, सॉरी बिटवीन द कंप्यूटर्स ऑन ए नेटवर्क। Few protocols that we will discuss here. Very first is HTTP, Hypertext Transfer Protocol. It is a set of rules that define how the web pages transfer data over the internet. आपने देखा होगा कि जब भी हम इंटरनेट पे कोई चीज सर्च करते हैं तो सबसे पहले HTTP लिखा जाता है। आप सोचते होंगे ये है क्या? तो ये एक बेसिक प्रोटोकॉल है जो किसी भी वेब इंफॉर्मेशन को आपको वन वेब पेज टू अनदर वेब पेज ट्रांसफर करवाता है। व्हाट आपने सपोज गूगल क्रोम ओपन किया, उस गूगल क्रोम ओपन करने में क्या हुआ, सपोज ये आपने ओपन किया और यहाँ पे आप कुछ भी डालते हो, सपोज CBSE, तो आपने CBSE डाला, तो अब ब्राउजर ने क्या काम किया, इस CBSE को डिटेक्ट किया और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी URL इसका वैलिड था वो वेब पेज यहाँ आपके सामने अवेलेबल करा दिया। ठीक है, तो HTTP क्या होता है? इट इज जस्ट यूज टू कॉल ए पर्टिकुलर वेब पेज ओवर द वेबसाइट। HTTPS। अब देखो इसमें सिर्फ S का डिफरेंस है। S का क्या मतलब है? सिक्योर, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। दो ये HTTP और HTTPS दोनों आपके अलग अलग प्रोटोकॉल हैं। वन इज प्रोवाइडिंग यू द मोर सिक्योरिटी। एस के साथ क्या होता है, जितने भी आपकी बैंकिंग साइट्स हैं, जितने भी आपके ट्रांजेक्शन साइट हैं, वो आपके एस सिक्योर्ड होती हैं। दिस इज ए सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP। द इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इनटू कोड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। उसमें क्या होता है, नाउअडेज मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स यूज दिस काइंड ऑफ प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है कि जो भी आप रिक्वेस्ट भेजते हो वेब पेज पे, वो आपको कहीं ना कहीं जाके किसी अनदर कोड में इनकोड हो जाती है और उससे क्या होता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोका जा सकता है। आप कोई भी बैंकिंग साइट खोलोगे, सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के, सपोज आप HDFC नेट बैंकिंग का ओपन करते हैं, तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे एक लॉक साइन है। लॉक साइन का मतलब है दिस वेबसाइट यू आर विजिटिंग इज सिक्योर वेबसाइट। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे देखना, अगर दिखेगा HTTPS, नहीं दिख रहा है तो मैं देखता हूँ कोई दूसरी साइट ट्राई करके। नोटिफिकेशन मैंने ब्लॉक किए हुए हैं। देखो ये रहा HTTPS, लुक एट हियर। आपको यहाँ पे क्या मिला? HTTPS। इससे इसका मतलब क्या हो गया कि मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। नहीं होगा जूम, आपका वेब पेज जूम हो रहा है। ओके ठीक है, तो HTTPS का मतलब है सिक्योर। उसके बाद हम बात करते हैं FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये वो प्रोटोकॉल होता है जो आपकी फाइल ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। जो भी फाइल आप अपलोड करते हो इंटरनेट के ऊपर या जो भी फाइल डाउनलोड करते हो, वो FTP कराता है आपका। ठीक है, मीन्स इट इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट अलाउज फाइल अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग फ्रॉम द अदर कंप्यूटर ओवर द नेटवर्क। जो भी आप व्हाट्सएप पे आप जैसे होमवर्क मुझे करके आप कंप्लीट करके भेजते हो फोटो खींच के,
तो वो क्या है, आप अपलोड कर रहे हो डेटा को। और जब कोई इंटरनेट से डाउनलोड करते हो, जैसे मैंने आपको वीडियो भेजा, आप अगर वीडियो को डाउनलोड करते हो तो दैट इज डाउनलोडिंग। अगर टेक्निकली मैं बताऊं कि अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में क्या डिफरेंस होता है, टेक्निकली तो ये है, अपलोडिंग मीन्स ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम योर लोकल कंप्यूटर टू द वेब सर्वर, it is known as the uploading, while transmission of files from the web server to your local computer is known as the downloading. तो FTTP is responsible for uploading and downloading. उसके बाद आता है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आप पहले इतना पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये वो प्रोटोकॉल होता है जो आपकी ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है। whatever data you are going to send from one node to the another node, totally it is controlled by TCP. First, it is break up all the data into packets. Then at the receiver end, it is reassemble also the packets. ये चीजें आपके लेवल से थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए मैं आप डिटेल में नहीं जाऊंगा। पैकेट क्या होता है इतना बता देता हूँ कि सपोज आपका एक 10 MB का डेटा है, वो आप ट्रांसफर कर रहे हो वन कंप्यूटर टू द अनदर कंप्यूटर। तो क्या होता है, जरूरी नहीं है कि वो 10 MB का एक साथ चला जाए, वो ब्रेक्स पार्ट्स में जा सकता है। एंड दीज पार्ट्स ऑफ इक्वल साइज, सपोज 2 MB का 5 पार्ट्स बन गए, तो ईच 2 MB पार्ट इज नोन एज ए पैकेट। तो आपका डेटा जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल होता है। अब जो आपका डेटा था वो 5 पैकेट्स में डिवाइड हुआ, उस 5 पैकेट्स ने क्या किया, पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3, पैकेट 4, पैकेट 5। एट द रिसीवर एंड जरूरी नहीं है कि आपने जो पहले भेजा पैकेट 1 वो पहले डिलीवर होगा, हो सकता है वहां पे पैकेट 3 पहले डिलीवर हुआ, पैकेट 5 बाद में, फिर पैकेट 1, फिर पैकेट 2 और लास्ट में पैकेट 4। तो क्या करता है टीसीपी, आपके सेंडर एंड पे उनको उनको ब्रेकअप करता है और रिसीविंग एंड पे उनको रीअसेंबल करता है इन द सेम सीक्वेंस एज दे वर सेंट फ्रॉम द सेंडर। उसके बाद आता है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है। दिस प्रोटोकॉल डिफाइन द फिजिकल एड्रेस ऑन द नेटवर्क ऑफ एनी काइंड ऑफ द कंप्यूटिंग डिवाइस कनेक्टेड विद द नेटवर्क। अगर आप कंप्यूटर से अभी कनेक्टेड हो, आपके फोन से, लैपटॉप से, किसी से भी, तो योर कंप्यूटर, योर मोबाइल हैंडसेट, एवरी कंप्यूटिंग डिवाइस हैज असाइंड ए यूनिक आईपी। और आपको कंप्यूटर, आपका मोबाइल फोन उसी आईपी से ट्रेस होता है कि आपका ये जो आप एक्सेस कर रहे हो, सपोज आप यहाँ बैठे कोई भी चीज एक्सेस कर रहे हो, अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपकी एक्टिविटी को एक्सेस करना चाहें तो आपका आईपी ही एक ऐसा जरिया है जिससे वो आपको ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद आता है POP3, POP, Post Office Protocol, version 3. It is an internet standard post protocol that allows email clients to retrieve email messages from an email server. देखो, दो तरह होते हैं, एक POP3 प्रोटोकॉल होता है ईमेल के लिए, एक IMAP प्रोटोकॉल होता है। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, समझने की जरूरत है। क्या होता है, पीओपी के अंदर क्या होता है कि आप अपनी ईमेल को रिट्राइव करते हो, मेल जो सर्वर है वहां से आप एक्सेस, जैसे मान लो आपने जीमेल के ऊपर अकाउंट बनाया, किसी ने आपको ईमेल भेजा, अगर आप फोन के अंदर पीओपी प्रोटोकॉल के थ्रू आपने सेटिंग करके ओपन कर रहे हो, तो क्या होता है कि जो सर्वर से आपने ईमेल रिट्राइव किया वो अब सर्वर पे आपका टेम्परेली अवेलेबल नहीं रहेगा, आपके आपके हैंडसेट के अंदर वो आ गया। अगर आपने हैंडसेट डिलीट कर दिया तो आप दोबारा उसको उस हैंडसेट पे वहां पे नहीं पाओगे, आपको फिर उसको IMAP ऐप प्रोटोकॉल के थ्रू उसको एक्सेस करवाना पड़ेगा सिस्टम पे। कई बार आपने देखा भी होगा, जनरली आपके मोबाइल फोन के ऊपर, सपोज आपका मोबाइल फोन आपने रीसेट कर दिया, तो अब क्या होगा, अगर आपने POP3 किया हुआ है तो आपकी जो बैकडेट की जो मेल्स हैं वो शायद आपको मोबाइल पे ना मिले, लेकिन वेब सर्वर पे आपके अवेलेबल हैं। आप गूगल क्रोम में या लैपटॉप पे खोलोगे तो सारी ईमेल मिलेंगी, लेकिन आपके मोबाइल पे वो नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि आप पीओपी को यूज कर रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक बार आपने डेटा वहां से कंप्यूटर पे, मोबाइल फोन के अंदर लोकली एक्सेस कर लिया तो टेम्परली वो आपके लिए अवेलेबल नहीं होता। जबकि इन केस ऑफ IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, जितने भी ईमेल से, जितने भी टेक्स्ट मैसेज हैं वो आप इससे करते हो। इससे क्या होता है कि आपका हैंडसेट या आपका कंप्यूटर जो लोकल मशीन है वो सर्वर के साथ टाइम टू टाइम सिंक्रोनाइज होती रहती है। तो व्हाट एवर न्यू ऑन द सर्वर, ईमेल सर्वर, दैट विल रिफ्लेक्ट टू योर कंप्यूटर ऑल्सो। एक होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दिस इज एन ईमेल प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग ईमेल मैसेज अक्रॉस द इंटरनेट। So this was all about this chapter, and try to solve the exercise. I will save the solution by Monday or Tuesday. Till that you try yourself. After that I will when I will share the solution, you can match your solution with that.
Okay, thank you students, thank you for listening and watching the video.